نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ہاں بلا تاخیر آپ حضرات کے سامنے ہیں ناشر مسلک کے اعلیٰ حضرت مسلک قوم ملت حضرت علامہ الحاج حافظ اللہ بخش صاحب قبلہ اشرف بھی خطیب امام نگینہ مسجد باسنی جنرل سیکریٹری سنی تبلیغ جماعت. تو حضرت کا استقبال بہترین تکبیر رسالت سے فرما لیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. حافظ اللہ بخش صاحب قبلہ اشرفی، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. الحمد لله الذي عد الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من سار بالعلم حيا لم يمت أبدا، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم العلم حياة الإسلام. صدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. آئیے ہم سب سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ رسول رحمت فخر بنی آدم تاجدار ارب و عجم اللہ کے پیارے حبیب دانۂ غیوب و روح فدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ وآلہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. چمن میں پھول کا کھلنا تو کوئی بات نہیں، چمن میں پھول کا کھلنا کوئی بات نہیں، زہے وہ پھول جو گلشن بنائے صحرا کو. محترم سامعین کرام، آج ہم اور آپ سب دارالعلوم انوار مصطفیٰ کے سالانہ جشن دستار فضیلت میں حاضر ہیں اور اس دین کے عظیم قلعے کے سائے میں بیٹھ کر دارالعلوم انوار مصطفیٰ سیلاؤ شریف کی خدمات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. منبر نور پر تشریف فرما حضور پیر طریقت سید الشاہ نور اللہ صاحب قبلہ مدد ذل العالی و دیگر علماء کرام تشریف فرما ہیں اور آج دارالعلوم انوار مصطفیٰ کے دامن میں پلنے والے وہ مبارک و مسعود طلبہ وہ بھی منبر نور پر تشریف فرما ہیں. بہرحال ہمیں اس ادارہ کی خدمات کو سلام عقیدت پیش کرنا ہے کہ اس نے اس صحرا میں گلشن اسلام نے وہ پھول کھلائے ہیں کہ اس کی خوشبو اب دور دور تک مہک رہی ہے. اور ہر سال الحمدللہ امت مسلمہ کو علماء کی ایک جماعت، قرہ کی ایک جماعت یہ ادارہ دے رہا ہے سال جو محراب و منبر کی زینت بن کر دین اور سنیت کی خدمت انجام دے رہے ہیں. اس ادارے سے الحمدللہ جو چمک اور دمک اس علاقے میں دیکھنے کے ملی ہے یہ اس ادارے کی برکت ہے. ہر سنی ادارہ الحمدللہ جس کی خدمات دین و سنیت کے لیے ہیں
उन तमाम इदारों, उनके अराकीन, उनके मोहतमीम, उनके असातिज़ा की खिदमत को हम सलाम पेश करते हैं। तो इस सहरा में बैठकर ऐसे ऐसे फूल खिला रहे हैं जिसकी खुशबू अल्हम्दुलिल्लाह दूर दूर तक महक रही है। तो दारुल अनवार मुस्तफ़ा की ये मोहब्बत अल्हम्दुलिल्लाह आपको यहाँ खींच कर लाई, और पीर साहब किबला का इखलास जो दीन और सुन्नत की खिदमत के लिए वक्त हैं और गुलशन इस्लाम की जो आबियारी कर रहे हैं, इनका इस इलाके पे बहुत बड़ा एहसान है। इसलिए एहसान है कि उम्मत की फिक्र है, कौम मुस्लिम की फिक्र है। जिसको कौम मुस्लिम की फिक्र होती है, मिल्लत का दर्द सीने में है, वो ऐसे दीन के अजीम किले तैयार करता है। ऐसे दीन के अजीम किले तैयार करके दीन और सुन्नत की तरवीज और इरशाद करता है। इन इदारों की बरकत आप पूरे इलाके में आप देख रहे हैं, नारे तकबीर, हर तरफ दीन नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत मौलाना अबू बकर साहब किबला अशरफी, हाफिज सईद साहब किबला अशरफी, कारी आफ्ताब आलम साहब किबला, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दीन और सुन्नियत का माहौल नजर आ रहा है, इस्लामी तहजीब और तमद्दुन नजर आ रही है। इल्म की बरकतों से आज बस्ती बस्ती गांव गांव जो मसाजिद और मदारिस आबाद हैं, इस इदारे की देन है, और दिगर सुन्नी अहले सुन्नत वल जमात के इदारों की देन है। जहां जहां से ये नौनिहान इस्लाम फारिग होकर निकलते हैं, दस्तारे फजीलत यहां से लेकर दीन की खिदमत के लिए अल्लाह की जमीन पर ये दीन की तबलीग के लिए निकले हैं। जहां भी अल्हम्दुलिल्लाह कई इलाकों में जाना होता है तो यहाँ के फारिगीन से मुलाकात होती है। वो कहते हैं हजरत आप दारुल अनवार मुस्तफ़ा आते हैं, ये सुनकर बड़ी मुसर्रत होती है कि सेलाऊ शरीफ कहाँ है, कहाँ जोधपुर है, कहाँ बीकानेर है, कहाँ जालोर है, कहाँ नागौर है, लेकिन वहाँ की अल्हम्दुलिल्लाह तरबियत याफ्ता फारिग शुगनान व दीन की खिदमत कर रहे हैं। इससे आपके इलाके का भी नाम रोशन हो रहा है और दारुल का भी नाम रोशन हो रहा है कि यहाँ इसकी आगोश में पल कर दीनी तालीम से आरास्ता होकर दीन की खिदमत कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, वरना ये इलाका बंजर था, दूर दूर तक इल्मी मकातिब कायम नहीं थे, लेकिन इस इदारे की बरकत से हर गांव में मस्जिद बन रही है, मदरसा कायम हो रहा है, छोटे छोटे मकतब चल रहे हैं। शायद भाई दिन कोई ऐसा होगा जो दीन की तालीम से आरास्ता नहीं हो रहा है। घर घर में कुरान की जो तिलावत की आवाज आ रही है, घर घर में कुरान की तिलावत का जो माहौल है, आज लोगों के सरों पर टोपियां नजर आ रही हैं, इस्लामी लिबास नजर आ रहा है, इस्लामी तहजीब और तमद्दुन नजर आ रही है, इस्लामी तशद्दुद जो कायम है वो इस इदारे की बरकत है। इसलिए मेरे आका फरमाते हैं इल्म इस्लाम की हयात, इस्लाम की जिंदगी है, इस्लाम की बका है। जब तक मदरसों से दीन की तबलीग और इशाअत होती रहेगी, इस्लाम मुस्कुराता रहेगा, इस्लाम की ताबानी से पूरा इलाका मुनव्वर होता रहेगा। और जहाँ ये इदारे खत्म हुए, जहाँ इन इदारों का नाम मीठा आपको मालूम नहीं है, मौजूदा रसिया, निशापुर, तिरमिज वगैरह बड़े बड़े एक दौर था कि वहाँ इल्मी इदारों के बड़े बड़े मुहद्दिसीन दर्स हदीस दिया करते थे, लेकिन जब से मदरसों का फुकदान हो गया, जब से वह मदरसे उनको खत्म कर दिया गया, आज आपको इस्लामिक तहजीब और तमद्दुन वहाँ नजर नहीं आ रहा। आप बुखारा जाइए, तिरमिज जाइए, निशापुर जाइए, आप उलमा से पूछिए, बड़े बड़े मुहद्दिसीन की जाए विलादत के, और एक दौर का लोग इल्म हदीस सुनने के लिए, इल्म हदीस पढ़ने के लिए निशापुर जाया करते थे, बुखारा और तिरमिज जाया करते थे। लेकिन आज वो माहौल नहीं है जो हमारी ताबनाक मादी में जो माहौल नजर आ रहा था। आप गौर करेंगे ये क्यों है? इसलिए कि इदारे वहां ना रहे, दीन के किले वहां ना रहे, इसलिए इस्लामी तहजीब और तमद्दुन ने दम तोड़ दिया और वो इस्लामी हरारत लोगों के दिलों से निकल गई। अब आजाद ख्याल लोग पैदा हो गए, अब वो दीनी माहौल नहीं रहा। आपको जो चेहरों पर नूर नजर आता है, यहाँ
या बर्रे सगीर में वो आपको नजर नहीं आएगा। या आप यूं समझो इतनी मस्जिद आबाद नजर नहीं आएंगी। जब बाकायदा दीनी तालीम या तलबा हासिल करते वो माहौल नजर नहीं है, इसलिए कि मुसलमान जो हैं अलामान वल हफीज ये दौर है। इसलिए मेरे भाइयों, दीन के इदारों का ताउन असल में इस्लाम का ताउन है, दीन का ताउन है। दीनी इदारों के साथ खैर खाई और इनका ताउन करके इन्हें आबाद और शाद रखना, इन्हें आबाद रखना एक तरह से दीन की तबलीग और इशाअत है। इसलिए अल्लाह फरमान या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसारल्लाह, ईमान वालों अल्लाह के दीन के मददगार हो जाओ। तो दीनी इदारों की मदद करनी, अल्लाह के दीन की मदद करनी है, इस्लाम की मदद करनी है। दीनी इदारों को तक़वियत पहुंचाना, इस्लाम को मजबूत और मुस्तहकम करना है। इसलिए कि जहाँ दीनी तालीम पर अमल होगा, जहाँ दीनी तालीम का बोलबाला होगा, मस्जिद और मदरसे आबाद होंगे, मसाजिद हमारी आबाद होंगी, नमाजियों की कसरत होगी, दीनी माहौल होगा, तो आप समझो कि मुसलमानों ने इस्लाम की एक एक बात पर अमल हो रहा है। अज्ञान इसको मिटा नहीं सकते। इसलिए आप इन मदरसों को इनकी आबियारी करते रहो। और आज जिस तरह ये ठाटे मारता हुआ मजमा में नजर आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह ये दीन के साथ खैरकाई है, इन इदारों के साथ खैरकाई है। पीर साहब की आवाज पर लब्बैक कहते हुए अभी हफीज सईद साहब ने रास्ते में मुझे कहा, ये जैसे मीना का मंजर नजर आ रहा है, जिस तरह